सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार. Thank you very much for taking out time to come and give us this warm and wonderful farewell. Uh, I think most of you have said whatever you had to say, and it has been a very, very long journey spanning over 3 decades, 32 years to be precise, and very difficult to actually capture every single moment of what you have lived here. और ये मुझे महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि 4.5 मिनट में जितनी बातें मैं कह सकता था उसको इनकैप्सुलेट करके एक वीडियो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ. Director NID and my wonderful colleague, friend, now I can call you a friend, we have been friends, right? My another wonderful friend Shilpa and Jignesh and everybody else, and my कैसे एड्रेस करें आपको. इनको मैंने कभी इनके साथ तो मैंने अंग्रेजी छोड़ी है, मैंने हिंदी में बात नहीं की, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं आगे से. तो हमारी इनकी डिफिकल्टी ये है कि हम तो कई बार प्रोजेक्ट पे भी साथ में गए तो फॉर्मल मीटिंग में भी हम ये भोजपुरी में शुरू हो जाते हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है. और मुझे याद है वो यूपीएससी का प्रोजेक्ट करने गए थे और इन्होंने कहना शुरू किया थोड़ा सा भोजपुरी हो जाए. भोजपुरी हो जाए तो भाई जी हमारे कहलन की तो ना होई कैसे हो सके तो होबे ना करे. ठीक बात कमरा समझा के पढ़ो दिन करा कि ना ना होई ऐसे तू चुप रहा, तनी शांति रखा, काहे कि बड़ा बड़ा लोग बैठल रहे जा. I used to work as a moderator, you know, but then this is a typical Bhojpuri mentality. We are like phosphorus. When you fall on the ground, you just flare up. But then I think most of you have probably noticed that. और कई लोगों ने कहा भी कि फैकल्टी फोरम की बात दिलाएगी और क्रिटिकल एंड ऑल दैट. मुझे लगता है कि आप क्रिटिकल हो सकते हैं विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड. और क्रिटिकल होना एक अच्छी बात है, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशनल एटमॉस्फेयर में जब आप कोई बात करते हैं तो थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपनी भी कमजोरियों पे ध्यान देने के लिए. वो इसलिए नहीं होता है कि आप किसी को भला बुरा कहना चाह रहे हैं, ऐसा करने की वो इरादा नहीं होता है. और ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा भोजपुरी ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, बड़ा आउटस्पोकन है, वो फ्रंट पे आ जाता है. बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं पैरोडियल नहीं बनाना चाहता इसको. बट मुझे लगता है कि when I came in 1992 to NIT, came from an entirely different background. I had my basic training into media, the Times of India, where I worked for over 5 years and then learned media and journalism and mass communication and advertising and so on and so forth. And when I landed up here with 5 good appointment letters with me and good opportunities, and somebody encouraged me to go and join NIT because NIT was considered to be a lesser known but very premier institution. I don't want to go into all that history, but when I landed here, believe me, I felt like Alice in the Wonderland. Because people were talking about creativity, and we, being students of literature, for us, creativity was of a different kind, you know, metaphor, simile, figures of speech, or poetry, or drama, or Shakespeare imagery, and so on. So हमारे तो creativity को मानने लगते हैं, पर हमने creativity को यहाँ पे उभरते देखा, पनपते देखा, उगते देखा, उसको बीज से पौधा बनते और पौधे से पेड़ बनते देखा. तो क्रिएटिविटी को रियल हैंड्स ऑन तरीके से समझने का मुझे लगता है कि NIT ने एक मौका वो दिया. Later when you really get entrenched into the whole system and then you start thinking aloud and then your mind actually start interacting with the environment and the situation, आप थोड़ा दूसरे ढंग से भी देखने लगते हैं, फिर आप उसके अलग अलग मायने ढूंढने लगते हैं. फिर हमने क्रिएटिविटी को दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश की और जहाँ भी रहा तो और दूसरे लेवल पे ले जाके बात करने की कोशिश की. वो पब्लिक पॉलिसी में आया वो सब, फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा. 2-3 बातें जो है वो कह के मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा.
और एक बहुत अच्छा सफ़र था, wonderful experience. I was privileged. I consider myself to be privileged that I could work with some of the most creative minds, most creative people, and most illustrious people who were known into the field of creativity and design and all that. Had the opportunity to interact them with one-on-one. डिज़ाइन को समझने का मौका मिला और एक somebody who came from a different background altogether with a different preparation in life altogether. And then I realized that you can probably, if you want to really stay here, you can look at design from an interdisciplinary perspective. और कुछ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में प्रोविडेंशियल होती हैं तो हम घूम फिर के आ गए फिर इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज़ में। और फिर डिज़ाइन को हमने कभी पब्लिक पॉलिसी के टर्म्स में देखा, कभी इनोवेशन के टर्म्स में देखा, कभी कम्युनिकेशन के टर्म्स में देखा, कभी मीडिया के टर्म्स से, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया और जितना समझते गए उतना एक नए नए उसके डिमेंशंस खुलते चले गए। Now when I look at design, look back into the whole evolution of design in India itself. 1992 when I came here, it was the Charles Eames India report, which was considered to be the Bible for NID and the genesis for design and design movement in India. And it was the stress that it laid at that point of time was primarily on a couple of areas, which was quality of life, shelter, food, housing, and so on and so forth. Because the requirements of the society were very basic and limited. We were still at the stage of we're a crawling economy. हम तो खड़े भी नहीं थे अपने पैरों पे, तो हमारी डिजाइन का जो अप्रोच था, जो पर्पस ऑफ डिजाइन था, वो बिल्कुल अलग था। Now when I see in retrospect in 2024, in last 10 years, 15 years, 20 years, whatever you may like to call it, design has grown into a different field altogether. New opportunities have come up, new challenges have come up. किसने सोचा था कि डिजाइन एनवायरनमेंट के बारे में बात करने लगेगा, डिजाइन पॉलिसी के बारे में बात करने लगा, डिजाइन इनोवेशन के बारे में बात करने लगेगा, डिजाइन टेक्नोलॉजी के साथ इस कदर इंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज पूरा रेल जो है वो एक बदल गया है, तो नए चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ डिजाइनर्स, डिजाइन थिंकर, डिजाइन प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल टू लुक एट डिजाइन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव altogether. इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। तो ये तो डिज़ाइन की बात हुई और उसके साथ मुझे लगता है कि NID ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना एवोल्यूशन हुआ है और जिस तरीके से NID भी बदला है, काफ़ी बदला है। जो 92 में जिस तरीके से हम लोग डिज़ाइनर्स और डिज़ाइन के चैलेंजेस की बात करते थे, अब वो बहुत बदल गया। बच्चे भी नए ढंग से डिज़ाइन को देखना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है दिस इज probably exciting time that the nation is going through. Probably the most exciting and the most challenging time that we have entered into. There's so many things, so many areas which have suddenly opened up. हमने सोचा नहीं था कि नए 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे स्टार्टअप की बात करेंगे और स्टार्टअप करके फिर यूनिकॉर्न की बात करेंगे और यूनिकॉर्न में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ जाएंगी। सो आई थिंक this is probably the most exciting period in Indian history, in a society, right? Which has been documented. And I think if design is able to align itself with this new emergence, तो मुझे लगता है डिजाइन अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा और एक बहुत ही फ्रूटफुल, मीनिंगफुल प्रोफेशन, करियर और परस्यूट के तौर पे ये एस्टैब्लिश होगा। इसके लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बहुत गौर से सोचना है और यंग और जो मैच्योर जनरेशन है, दे नीड टू कोलैबोरेट बिकॉज द मैच्योरिटी दैट यू हैव अर्न एक्वायर्ड, it now needs to be cross-fertilized with the fertile minds of the young generation. Sometimes I get completely amused when I look at, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ क्लास में तो मुझे आधे घंटे समझ में नहीं आता है, 2 दिन समझ में नहीं आता है कि मैं जो इतनी बातें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ बच्चे पकड़ पाते हैं कि नहीं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि फाइनली when they come out with their projects and assignments and all that, you believe you me, because they are completely
out of the world sometimes and completely mind boggling. अब मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी, इतनी क्रिएटिविटी, इतनी क्रिएटिव एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों में? So you are privileged. This institution is privileged because it is now dealing with those fresh minds and young minds. तो दो तीन चीजें हैं, उसके साथ मैं खत्म करूंगा. थोड़ा समय एक कमिटमेंट कर लें. कुछ समय हमको अपने लिए देना है, कुछ समय फैमिली के लिए देना है, और थोड़ा समय राष्ट्र के लिए देना है. You have to give some time for the nation because this is a time when nation requires you. As I told you, this is the most exciting time, most challenging. The challenging period is over. We have already taken off. We have taken off, and now we need to take over, right? And this movement should actually start with you. This premier institution, this most illustrious institution is actually expected to generate that kind of energy. The age of inertia is gone, is finished. The idea of a status quo and a status quo mentality is finished, is over. Design challenges these ideas. और डिजाइनर्स को चैलेंज करना है. तो इसके साथ हम लेके कैसे चल सकते हैं? आई एम वेरी हैप्पी. इतने साल प्रवीण के साथ काम करने का मौका मिला. मैंने उनको देखा, उनके अप्रोच को देखा. शिल्पा के साथ काम करने का मौका मिला. प्रवीण बैठे हैं और ये हमारे जिग्नेश, तमाम जितने कलीग्स हैं, सबको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है. उसको कहीं पे एक जगह पे एक फोकल पॉइंट दिलाने की जरूरत है और बहुत चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं सोसाइटी में. हम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया. हम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया. एंड एवरीबडी हैज अ टाइम, हैज अ रोल. यू ओनली प्ले दैट मच ऑफ रोल. यू कैनॉट गो ऑन टिल एटर्निटी. डोंट थिंक ऑफ being at the same place, doing the same thing, because it brings about redundancy. मेरे सारे आइडियाज यूजलेस हो जाते हैं जब मैं यंग जनरेशन को अपने सामने देखता हूँ, बिकॉज वो ब्राइटनेस, वो शार्पनेस हम लोग लैक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो द ओल्ड एंड द मैच्योर शुड गिव वे, शुड मेक वे फॉर द फ्रेश आइडियाज, फ्रेश पीपल, फ्रेश माइंड्स टू कम अप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई Super will be superannuated. So I am superannuating today. My good friend Ranjit is superannuating. Rohit is also superannuating. All of them have been wonderful colleagues. रंजीत और हम थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा एक दूसरे उलझ भी गए थे PhD के टाइम पे, और मुझे बड़ी एंग्जाइटी थी कि भाई PhD पहला NID का प्रोड्यूस हो रहा है, टाइमली हो जाए. आई एम वेरी सॉरी रंजीत अगर मैंने कभी आपको हर्ट किया. आई डोंट मेंट इट. आई ऑलवेज वांटेड इट टू बी फॉर द इंस्टीट्यूट. तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत है, और उसको एक कैसे हम लाएं. हमारा टाइम हो गया. इसके बाद दूसरी भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत चीज़ सीख सकते हैं लाइफ में. लाइफ कभी स्टैंड स्टिल पे तो आता नहीं है. अगर आप चाहें तो कभी स्टैंड स्टिल पे आएगा नहीं. तो हमने जितना सीखा, हम अपनी विरासत जो भी है छोड़ के जा रहे हैं. आप संभालें, इसको आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं. यही गुजारिश आप लोगों से और यही एक्सपेक्टेशन है. जितने बढ़िया ढंग से आपने आज सारी चीज़ों को कहा है और जितने इंटरेस्टिंग ढंग से प्रेजेंट किया है, तो ये तो मतलब दिस वाज रियली अमेजिंग. रियली अप्रिशिएट यू. एंड प्रवीण, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एज अ डायरेक्टर एंड colleague also. It was a pleasure and privilege to work with you, and you have really done wonderful work for the institute. I hope the days to come इससे आगे की बातें भी हम करेंगे और फिर हम और आगे निकलेंगे. आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे. जब याद करेंगे, एक शेर के साथ छोड़ के जा रहा हूँ. मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि लौट के फिर आ न सकूँ.